All right, so welcome to the first lecture for our game theory course, game theory and strategic interactions. So first जो हमारा introductory session हुआ था उसमें हमने syllabus के बारे में बात की थी and what kind of course we are going to have. All the units are going to have similar weightage. So without spending any time here and there, we'll start with unit number 1. There is a lot to cover. It's a very mathematical course. So we'll try to keep up the pace. ठीक है, तो हम लोग अपनी pace को उसी हिसाब से रखेंगे. Because there are lots and lots of things to cover, lots of chapters to be covered, and quite intensive it is going to be. So let's begin. Okay? So we'll start with the first unit. The first unit is unit number 1. There's no specific name to it. The reference will be Osborne and Watson, chapter number 2 from Osborne, chapter number 4 and chapter number 11 from Watson book. We'll start with chapter number 2 from Osborne book today. Okay? Chalo, let's begin. So whatever we are discussing, the reference for this is going to be chapter number 2, Osborne. ठीक है, and the name of the chapter is Nash equilibrium. And the theory of Nash equilibrium basically. So we'll try to see what is Nash equilibrium, क्या मतलब होता है, वो सब हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले the name of your course is game theory and strategic interactions. So first of all, let's try to define a few things. कुछ चीजें हम लोग define करते हैं. There are a lot of definitions which are going to be here in this course. So slowly एक एक concept को with example समझते चलेंगे. There might be some points where it is difficult to visualize these things. There we'll try to give as practical examples as possible. We'll try to relate it to reality as much as possible, but some places it will not be possible. So we'll try to do things accordingly. चलो, सबसे पहले let's try to define a strategic game. पहली बात तो हम गेम से क्या समझते हैं, गेम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजिक गेम. ठीक है, सो यूजुअली आप बचपन में बहुत सारे गेम्स खेलते थे. व्हेन यू ग्रो अप देन आल्सो लॉट ऑफ गेम्स आर प्लेड. सो इन द सेंस ऑफ गेम थियोरी, व्हाट डू वी मीन बाय अ गेम, व्हाट डू वी मीन बाय अ स्ट्रेटेजिक गेम, उसका क्या मतलब होता है. सो तो ये जो स्ट्रेटेजिक गेम है इसका क्या मतलब होता है पहले ये समझते हैं. ठीक है, सो स्पेसिफिकली हम लोग किस तरीके के गेम की बात करें, स्ट्रेटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस. आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस. स्ट्रेटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस. ठीक है, we'll try to see what is the meaning of this term, but right now what are we doing, we are defining the meaning of a strategic game, specifically a strategic game with ordinal preference. इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहली चीज कोई भी गेम होगा उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे. क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वो देखते हैं. अ स्ट्रेटेजिक गेम with ordinal preferences it will consist of 3 things. It will consist of 3 things. What are those things? सबसे पहले कोई भी गेम अगर कोई इंसान खेलता है तो उसमें क्या सबसे जरूरी चीज होती है. आप कोई भी गेम खेलते हो तो सबसे जरूरी चीज क्या है उसमें. प्लेयर्स. परफेक्ट, तो पहली बात तो कौन खेल रहा है उस गेम को वो पता होना चाहिए. सो अ सेट ऑफ प्लेयर्स. ठीक है, आपको मान लो पता चल गया कि कौन प्लेयर्स हैं. उसके बाद हर गेम में क्या बताया जाता है. ट्राई टू थिंक कि कोई भी गेम में क्या बताया जाता है. रूल्स.
तो रूल्स बताए जाते हैं, या फिर इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि कोई भी प्लेयर किस किस तरीके के एक्शंस ले सकता है वो बताया जाता है, राइट? Yes, ma'am. क्या क्या एक्शंस वो ले सकता है। सो फॉर ईच प्लेयर, फॉर ईच प्लेयर अ सेट ऑफ एक्शंस, a set of actions. So first of all, who are the players? A set of players is required for any game to be defined. Then next thing, for each player, what are the set of actions? क्या क्या possible actions वो player ले सकता है वो पता होना चाहिए. What is the other thing? अब वो अलग अलग एक्शंस लेगा. एक प्लेयर ने कुछ एक्शन लिया, दूसरे प्लेयर ने कुछ और एक्शन लिया, किसी तीसरे प्लेयर ने कुछ और एक्शन लिया. तो एक एक्शन, तीनों प्लेयर का कुछ ना कुछ एक एक्शन सेट हो गया. प्लेयर वन ने कुछ प्ले किया, प्लेयर टू ने कुछ प्ले किया, प्लेयर थ्री ने कुछ प्ले किया. उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग दैट एक्शन प्रोफाइल. ठीक है. सो आप अलग अलग एक्शन प्रोफाइल्स पे कुछ एक्शन प्रोफाइल आपको पसंद होगी जो आपको ज्यादा, मे बी यू आर विनिंग इफ दैट इज बीइंग प्लेड. If let's say, if have you guys played a game like rock paper scissor? Yes, ma'am. है ना? ठीक है, तो उसमें रॉक पेपर सिजर, लेट्स से, सो रॉक पेपर. ठीक है. तो मान लो एक इंसान ने रॉक यूज किया, प्ले किया, एक ने पेपर प्ले किया, तो कौन जीता? Paper. पेपर विल, क्योंकि पेपर विल रैप अप द रॉक. ठीक है. रॉक और सिजर में क्या हुआ? Rock. रॉक विल विन. ठीक है. एंड देन पेपर एंड सिजर में हु विल विन? Scissor. सिजर. राइट. तो मुझे अलग अलग पॉसिबिलिटीज में पता है ना कि मैं क्या पसंद करूंगी, क्योंकि आई वॉन्ट टू विन. यस. लेट्स से इफ somebody tells me that the other person has played rock, तो मैं क्या खेलना चाहूंगी? either I would like to play, actually I would just like to play paper, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And if I tell you the other paper has used scissor, then what would I like to play? Rock. Rock. If I know the other paper has used paper, then I would like to be scissor, right? तो मतलब क्या है कि I have different preferences, different likings over different sets of action profiles, right? तो इस चीज को मैं क्या बोल रही हूँ कि फॉर एनी गेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हु आर प्लेइंग इट. सेकेंड ऑफ ऑल, फॉर एवरी प्लेयर व्हाट सॉर्ट्स ऑफ एक्शंस वी हैव, वी शुड नो दैट. thirdly, फॉर ईच प्लेयर, फॉर ईच प्लेयर, for each player, I should know, we should have preferences over the set of action profiles. Set of action profiles. Action profile is nothing but a set of all possible actions that different people can take. So for example, if there are two people playing, so rock, paper, so let's say this is player one, this is player two. So let's try it. Okay, I will give you example of this game with respect to all these three possibilities. I will give you that example. So first of all, did we understand this definition?
कि एक स्ट्रेटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंस का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड हैव अ सेट ऑफ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग दिस गेम. For each player, we should know what sorts of action each player is playing. Thirdly, we should have preferences of each player over set of action profiles. अलग अलग एक्शंस जो लोग ले सकते हैं उस पे हमारी प्रेफरेंसेस होनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी मीन बाय ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस. कि ऐसी प्रेफरेंस जिसमें आप सिर्फ ऑर्डरिंग आपके लिए मैटर करती है. ठीक है? इज दैट ऑल राइट? Yes, ma'am. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ द गेम इज रॉक पेपर सीजर, फॉर एग्जाम्पल, रॉक पेपर scissor, right? So tell me, what first thing, who are playing, how many people can play? Player 1 and player 2, only 2 people can play this game, right? So set of players क्या होगा? P1 and P2, player 1 and player 2, yes, Yes, ma'am. right? Now we need set of actions, कि वो लोग क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं. तो पहला प्लेयर क्या क्या एक्शंस ले सकता है, वो क्या क्या खेल सकता है? या तो वो रॉक करे, रॉक बोलेगा, या पेपर बोलेगा, या सीजर बोलेगा, राइट? सो एक्शंस क्या क्या हैं? आइदर रॉक और पेपर और सीजर. यस, ये 3 एक्शंस हो गए P1 के. और P2, प्लेयर 2 के क्या एक्शंस हो गए? उसके पास भी ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? कि ही कैन ऑल्सो से रॉक, या फिर पेपर, या फिर सीजर. है कि नहीं? Yes, ma'am. ये हो गया. फिर सेट ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर 1, प्लेयर 2, हर प्लेयर के लिए क्या क्या पॉसिबल एक्शंस हैं. ठीक है? थर्डली, सबसे पहले तो एक्शन प्रोफाइल क्या होती है? एक्शन प्रोफाइल इज बेसिकली जो भी प्लेयर्स क्या क्या पॉसिबल चीजें खेल सकते हैं उन सब चीजों का सेट. तो जैसे पहले प्लेयर 1 और प्लेयर 2, ठीक है? तो पहले प्लेयर 1 ने मान लो रॉक खेला, तो दूसरा प्लेयर क्या क्या खेल सकता है? हो सकता है कि उसने रॉक खेला हो, राइट? पहले इंसान ने रॉक खेला तो हो सकता है दूसरे इंसान ने पेपर खेला हो. पहले इंसान ने अगर रॉक खेला तो दूसरे इंसान ने हो सकता है कि सीजर खेला हो, राइट? तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई. उसके अलावा क्या होगा? हो सकता है इस इंसान ने, पहले इंसान ने पेपर बोला, तो दूसरे इंसान ने हो सकता है रॉक बोला हो. पहले इंसान ने पेपर बोला, हो सकता है हमारे दूसरे इंसान ने भी पेपर बोला हो. इसने पेपर बोला तो हो सकता है तीसरे इंसान ने सिजर बोला, राइट? अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि पहले इंसान ने सिजर बोला, फिर दूसरे इंसान ने रॉक बोला. हो सकता है इसने फिर से सिजर बोला, इसने पेपर बोल दिया. हो सकता है इसने सिजर बोला और इसने फिर से सिजर बोल दिया, राइट? तो ये कितने पॉसिबिलिटीज हो गए कि एक्चुअल में जब आप इन दोनों को गेम खेलता हुआ देखोगे तो आपको इनमें से, इन 9 आइटम्स में से कुछ भी देखने को मिल सकता है इन द रियलिटी. यस, Yes, ma'am. वी कैन सी एनीथिंग, दे माइट बी प्लेइंग एनीथिंग. सो व्हाट आर वी सेइंग? दैट प्लेयर 1 शुड हैव अ प्रेफरेंस ओवर ऑल दीज, कि वो ये सब में कौन सी प्रेफर कर रहा है. कि मैं इसको रैंक 1 दे रहा हूँ, इसको रैंक 2 दे रहा हूँ, इसको रैंक 3 दे रहा हूँ, राइट? तो ऐसी रैंकिंग हमारे लिए पॉसिबल होनी चाहिए. सो प्रेफरेंस ओवर एक्शन प्रोफाइल. सो जहां जहां पे भी प्लेयर 1 जीत रहा होगा वो उन चीजों को ज्यादा प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू द प्लेसेस वेयर ही इज नॉट विनिंग. एंड देन देयर विल बी सम प्लेसेस वेयर if you choose the same thing, then what is the outcome? अगर दोनों Ma'am. पेपर पेपर बोला तो क्या होता है?
कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं होता, फिर दोबारा से गेम खेलते हैं, राइट? यस मैम। तो वो मिडल स्टेज है, जीतता है तो हैप्पी है, और हारता है तो सैड है, राइट? तो जहां जहां पे भी वो जीतेगा वो सबसे ज्यादा, वो तीनों पॉसिबिलिटीज को सेम लेवल पे रखेगा। जहां जहां पे भी वो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल रखेगा, जहां जहां पे भी वो हारता है वो उनको थर्ड रैंक पे रखेगा। यस। तो इस तरीके से अलग अलग एक्शन प्रोफाइल्स पे उसकी प्रेफरेंस है। यस मैम। ऐसे ही प्लेयर टू के लिए भी है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो एग्जाम्पल था, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्ट्रेटेजिक गेम। सो किसी भी कोई भी सिचुएशन अगर इस तरीके से फॉर्मुलेट की जा सकती है, जिसमें सेट ऑफ प्लेयर्स हो, हर प्लेयर का कोई ना कोई एक्शन हो, और एक्शन प्रोफाइल्स पे जो प्लेयर्स हैं उनकी प्रेफरेंस लिस्ट की जा सकती है और उनको पता है कि उनकी क्या प्रेफरेंस है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक गेम। ये डेफिनेशन समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। अब जैसे, ये तो चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब लोगों की, जैसे मान लो, अब हमने बोला कि लोगों की प्रेफरेंस, जैसे हमने फॉर एग्जांपल इस केस में क्या देखा कि वेयर ही इज विनिंग, ही स्लैश शी इज विनिंग, वेयर द गेम इज रीडन, या फिर कह लो इसको न्यूट्रल। ठीक है। वेयर ही और शी इज लूजिंग। ये मेरे जितने भी एक्शन प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे, जितने भी अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, ये इन तीनों में से किसी ना एक कैटेगरी में फिट होते हैं। यस, राइट। यस तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब कैन वी ट्राई टू प्लीज फिट इन ऑल दीज वेयर ही इज विनिंग? सो मैं जहां जहां पे भी वो विन कर रहा है वहां पे स्टार लगा देती हूँ। ठीक है, ग्रीन स्टार लगाएंगे। सो प्लेयर वन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। रॉक रॉक में क्या हो रहा है? इट्स अ न्यूट्रल सिचुएशन, सो इसको एन बोल दिया। रॉक और पेपर में क्या हो रहा है? फर्स्ट प्लेयर इज लूजिंग और विनिंग? लूजिंग। लूजिंग। रॉक और सीजर में विनिंग। रॉक विनिंग। ठीक है। पेपर और रॉक में, वो एक just, हाँ, सो पेपर और रॉक में ही इज विनिंग, राइट? एंड पेपर पेपर में न्यूट्रल, पेपर सीजर में लूजिंग। लूजिंग, एंड सीजर रॉक में लूजिंग। लूजिंग, यस। एंड सीजर पेपर में विनिंग। विनिंग, और सीजर सीजर में न्यूट्रल, राइट? तो ये प्लेयर वन की सिचुएशन थी। तो अब एक बात बताओ, मैं ये सब करने की बजाय, मैं, एक तो तरीका हो गया कि so we know that this person, first person or second person, is preferring this as compared to this, as compared to this. This is most preferred than this, than this. Yes. इसको यस फर्स्ट रैंक दी जाएगी, इसको सेकंड रैंक दी जाएगी, फिर इसको थर्ड रैंक दी जाएगी, अगर ऑर्डरिंग करनी पड़े तो, राइट? तो हम ये ऑर्डरिंग में नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री देने की बजाय वी हैव अ बेटर वे ऑफ डूइंग दैट, दैट इज यूजिंग पे ऑफ फंक्शंस। व्हाट इज दैट? सो व्हाट आर वी सेइंग कि प्लेयर्स की जो प्रेफरेंसेस हैं, प्लेयर्स प्रेफरेंसेस, दे कैन बी represented by using payoff function. So payoff function can be
treated like a function which tells you how much benefit they are getting. So it's not actually some actual benefit they are getting, it's just a number which will help you in ordering. So जहां पे भी ये पे ऑफ फंक्शन बड़ी वैल्यू ले, वो आपको ज्यादा प्रेफर्ड है. तो जैसे मान लो ये जो भी पे ऑफ फंक्शन होगा, सो उनके लिए सिर्फ ऑर्डरिंग मैटर करती है, ऑर्डरिंग ओनली. इनका सिर्फ ऑर्डिनल सिग्निफिकेंस है, ओनली ऑर्डिनल सिग्निफिकेंस. ठीक है, मतलब इसका क्या है कि मान लो जो भी मेरा पे ऑफ फंक्शन है, उसमें ये जो भी मेरी जहां जहां भी मैं विन कर रही हूँ, विन विन विन, ये सबके कॉरेस्पॉन्डिंग में मैं सबको 5 नंबर दे दूं. जहां पे भी न्यूट्रल है वहां पे 3 नंबर दे दूं, और यहाँ पे 2 नंबर दे दूं, तो मेरे को पता है कि 5 नंबर इज बिगर देन 3 देन 2, राइट? सो दिस इज मोस्ट प्रेफर्ड than this is preferred, than this is preferred, right? Yes, So ma'am. P of function is like giving a number to any strategy of multiple players. तो अब इसको 5-3-2 बोलने की बजाय मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि इसको 10 बोल दो, इसको 7 बोल दो, इसको 5 बोल दो. तो नंबर्स का एक्चुअल में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनका सिग्निफिकेंस सिर्फ ऑर्डरिंग में है. यस साफिया, मैम, यू वर सेइंग समथिंग. जो विनिंग वाला था उसको ऐसा उल्टा जा सकता है कि 5, 7, 10। नहीं, फिर तो जिसको ज्यादा नंबर मिल रहे हैं वो ज्यादा प्रेफर्ड होगा. हायर वैल्यू इन द पे ऑफ फंक्शन विल मीन हायर प्रेफर्ड. अच्छा, ओके। तो बट उस नंबर तरीके कुछ भी चूज नंबर कर। अपना पॉजिटिव है। नंबर मतलब मतलब जैसे 10 है तो 20 या कुछ भी हम चूज कर सकते हैं ना। आपकी मर्जी है, आप इसको 20 बोल दो, आप इसको 20,000 बोल दो, इसको 10,000 बोल दो, इसको 5,000 बोल दो. एज लॉन्ग एज इनका रैंकिंग ये है ना कि ये टॉप पे है, फिर ये नीचे है, फिर ये नीचे है, पे ऑफ फंक्शन अपना काम कर रहा है. ओके मैम। सो पे ऑफ फंक्शन का काम क्या है? आपको ये बताना कि कौन सी चीज किससे प्रेफर्ड है, बाय टेलिंग यू व्हाट विच इज बिगर विच इज लोअर. नहीं, आपको अगर बोला जाए कि आपको क्रिएट करना है पे ऑफ फंक्शन, देन यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू योर ओन विश, बट इन द क्वेश्चंस दे विल गिव यू. बट ऑल आई एम सेइंग इज कि ये जो पे ऑफ फंक्शन है, इसका अपने आप में कि ये नंबर 1 ही क्यों दिया, ये नंबर 5 ही क्यों दिया, ये नंबर 11 ही क्यों दिया, उसका अपने आप में कोई रेलेवेंस नहीं होता. ये आप नंबर 1 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, उससे कोई मतलब नहीं है. ओके मैम। ठीक है, ये बोल रहे हैं. फाइन. हाँ, अगर इफ दे आस्क यू टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट, डू दैट, इट्स योर चॉइस, एज लॉन्ग एज ऑर्डर मैटर करे बस. कि जो कम प्रेफर्ड है उसको नंबर छोटा ही मिलना चाहिए एज कंपेयर टू द वन विच यू प्रेफर मोर. ठीक है हफिया, गुड. ठीक है, चलो. ओके, सो हम क्या समझ गए कि स्ट्रेटेजिक गेम क्या होता है, पे ऑफ फंक्शन क्या होता है. सो फॉर एवरी सिंगल स्ट्रेटजी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स यू गिव अ नंबर विच हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग द ऑर्डर इन विच यू आर प्रेफरिंग इट. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे अब धीरे धीरे हम सिचुएशन को आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे, बट अभी जितने भी तरीके के गेम्स हम देखेंगे उनके कुछ कॉमन फीचर्स होंगे. वो मैं कॉमन फीचर्स आपको अभी बता देती हूँ. ठीक है, वो कॉमन फीचर्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम विल बी एब्सेंट. टाइम विल बी एब्सेंट फ्रॉम द मॉडल. टाइम विल बी एब्सेंट फ्रॉम द मॉडल मतलब जैसे आप असली असली जिंदगी में मान लो किसी इंसान के साथ कोई इंटरेक्शन करते हो, तो देर इज अ स्कोप ऑफ मीटिंग दैट पर्सन नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, राइट? कि मान लो आज आपने किसी के साथ कोई बुरा एक्शन लिया, तो कल को वो आपके साथ क्या करेगा ये सोच के क्या पता आज आप उसके साथ कोई बुरा एक्शन ना लो. तो रियल वर्ल्ड में जो गेम्स होते हैं उसमें टाइम का कंपोनेंट है. यस. यस मैम। तो we will see later on games wherein there is a component of time. कि टाइम पीरियड 0 में आपने क्या किया, टाइम पीरियड 1 में आपने क्या किया, टाइम पीरियड 2 में क्या किया, ऐसे कंपोनेंट्स होंगे. बट अभी के लिए
जो भी गेम्स हम देखेंगे दे आर ऑल वन टाइम गेम, कि एक बार गेम खेल गए और फिर भाग गए, तो देर इज नो स्कोप ऑफ रिवेंज कि अच्छा तुमने ये किया तो अब मैं रिवेंज लूंगी। तो ये डर नहीं है लोगों को, ठीक है। सो अभी जो भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे उसमें टाइम का कंपोनेंट एब्सेंट है। दिस इज वन फीचर दैट वी विल कीप। इस अजम्पशन को आगे जाके जो हमारी यूनिट्स आएंगे उसमें हम लोग रिलैक्स करेंगे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। सो what are we saying when we are saying that time will be absent? We are saying each player chooses her action once and for all। एक ही बार चूज करता है एंड ये दोनों प्लेयर्स या 10 प्लेयर जितने भी प्लेयर्स होंगे सब अपने एक्शंस साइमल्टेनियसली चूज करेंगे। मतलब इट इज नॉट लाइक कि प्लेयर वन जो है पहले उसने चूज कर लिया कि रॉक या पेपर या सीजर, फिर मैं प्लेयर टू देख रही हूं इसको कि अच्छा तुमने क्या चूज किया, फिर उसके हिसाब से मैं चूज करूंगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, यू आर डूइंग एवरीथिंग साइमल्टेनियसली। बट आगे जाके ऐसे भी गेम्स होंगे जहां पे पहला स्टेप कोई एक प्लेयर लेगा, फिर उसके एक्शन उसने क्या स्टेप लिया वो लोगों को विजिबल होगा, फिर बाकी लोग स्टेप चलेंगे, फिर दूसरा प्लेयर कुछ और स्टेप चलेगा, फिर कुछ और स्टेप्स होंगे। इस तरीके का सिनेरियो भी होगा हमारे पास आगे जाके। बट अभी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, उनको हम लोग एक्सटेंसिव फॉर्म गेम्स बोलते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस मूव गेम्स। पीपल आर मूविंग साइमल्टेनियसली, पीपल आर चूजिंग देयर एक्शंस साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब मान लो आपको पता चल जाएगी ये इंसान रॉक पेपर या सीजर में से कुछ एक चूज कर रहा है, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू विन, राइट। यस मैम। और कुछ लोग जब चीटिंग करते हैं इस गेम में तो ऐसे ही करते हैं, वो स्लाइट डिले करते हैं और अब देख लेते हैं कि वो क्या करने वाला है, राइट। यस मैम। तो ऐसे ही वो यही है कि वो साइमल्टेनियसली नहीं खेल रहा है, जो कि रूल है उस गेम का। एनीवेज, सो other feature that we will keep continuing in this entire discussion until and unless we mention otherwise is that the players will choose their actions simultaneously एक साथ चूज करेंगे। मतलब किसी भी प्लेयर को किसी दूसरे प्लेयर का एक्शन नहीं पता उसने क्या एक्शन लिया, ठीक है। नो प्लेयर is informed of the actions of any other player, ठीक है। किसी भी प्लेयर को किसी दूसरे प्लेयर के क्या एक्शंस होने वाले हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती है, ठीक है। चलो जी, सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस मूव गेम्स, ठीक है जी। तो इस तरीके की कहानी रहने वाली है अभी कुछ वक्त तक, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक गेम क्या होता है, एक एग्जाम्पल देख लिया, क्या क्या हमारी सिचुएशन रहने वाली है इस पूरे डिस्कशन के दौरान, वो हमने देख ली है, फाइन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो मैम। ठीक है, ओके। सो अभी आपको हो सकता है कि ऐसा फील हो रहा हो कि सिर्फ जो एक्चुअल आपने बचपन में गेम्स खेले थे वो, या कुछ जिनको आप एक्चुअली लिटरली गेम्स बोलते हो कि लेट्स प्ले गेम्स, सिर्फ वही गेम्स होते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी डे टू डे में जो इंटरेक्शंस होती हैं, डे टू डे में जो एक्टिविटीज आप होते हुए देखते हो, अगर आप उनको गहराई से सोचो, दे आर ऑल गेम्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू गिव यू द ब्यूटी ऑफ दिस इज एवरी सिंगल इंटरैक्शन
whereas you are responding something and the other person is also responding something, and you also have something to gain from that interaction, the other person also has something to gain from that interaction, there is a game involved. For example, बहुत सारी जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं उसको एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म गेम के फॉर्मेट में हम लोग जो है मॉडल कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं अभी कैसे मॉडल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब फर्म्स मार्केट में होती हैं, जैसे कि बहुत सारी फर्म्स हैं, देयर आर मल्टीपल फर्म्स, वो जिस तरीके से ऑपरेट करती हैं, कैन दैट बी मॉडल्ड एज अ गेम? कोई भी बेसिकली बिजनेस, क्या उसको एक गेम की तरह मॉडल किया जा सकता है? यस मैम। मैम परफेक्ट कंपटीशन वाला जो मार्केट होता है वो। ओके, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट किस तरीके से? मैम कि वो मतलब प्राइसिंग रखते हो, क्या क्वांटिटी डिसाइड करते हैं और फिर अपने कंपेटिटर को देख के कैसे चेंज करते हैं ये सब प्रोडक्शन वगैरह। तो बेसिकली नॉर्मली क्या हो रहा है कि एक सिचुएशन में प्लेयर्स कौन है? फर्म्स। ठीक है, मान लो एक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, या मान लो बेवरेज इंडस्ट्री है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें बिग प्लेयर्स कौन से हैं? पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, बहुत सारी जो हैं फर्म्स, इन्हीं की ओन्ड है, काफी सारी अलग अलग ब्रांड्स हैं उनके, लेकिन पेरेंट कंपनी एक ही है, राइट? तो प्लेयर्स क्या हैं? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट? उनकी जो एक्शंस है वो क्या है? मान लिया जाए कि सबकी क्वालिटी सेम है, तो ब्रॉड लेवल पे एक्शंस क्या हो सकता है कि आप क्या प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, राइट? यस मैम। यस तो मैम। उनका एक्शन क्या हो सकता है कि उनके पास पॉसिबिलिटी है अलग अलग प्राइसेस चार्ज करने की, कि मान लो अगर दो कंपनीज हैं तो अलग अलग प्राइसेस चार्ज करेगी। और फिर प्रेफरेंसेस कैसे डिसाइड होंगी? जो भी अलग पॉसिबिलिटी है, जिस पॉसिबिलिटी में उसको जितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो उस चीज को ज्यादा प्रेफर करेंगी। यस, यस मैम। राइट। तो ये क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, राइट? तो ये भी तो एक गेम ही हो गया ना, दिस इज ऑल्सो लाइक अ स्ट्रेटेजिक गेम, कि कंपनीज अपना प्राइसिंग किस तरीके से करती हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजिक गेम ही हो गया, राइट? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। पॉलिटिकल, मान लो बहुत सारे इलेक्शन जो है, क्या उसको एक स्ट्रेटेजिक गेम की तरीके से देखा जा सकता है? क्या इलेक्शंस को एक गेम की तरह देखा जा सकता है? हु आर द प्लेयर्स इन दिस गेम? पॉलिटिशियन। तो जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, द कैंडिडेट हु इज रनिंग फॉर ऑफिस, दैट इज अ प्लेयर इन दिस केस, राइट? और उनके एक्शंस क्या हैं? एक्शंस ये हैं कि आप कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हो, है कि नहीं? यस मैम। कि अलग अलग एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली कैंपेनिंग रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर, सो हर इंसान कितना कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है या करना चाहता है, दैट कुड बी एन एक्शन, राइट?
कैंपेन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और प्रेफरेंसेस कैसे पता चलेंगी? मतलब नंबर ऑफ वोट्स। नंबर ऑफ वोट्स, या फिर वो कितना एक्सपेंडिचर करना चाहेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? कि भाई जिस सिचुएशन में उसकी जीतने के सबसे ज्यादा चांस होंगे, वो उस सिचुएशन को सबसे ज्यादा प्रेफर करेगा, राइट यस। Yes, ma'am. कि नहीं? तो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, सो जितने भी एक्शन प्रोफाइल्स होंगे जिसमें जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होगी, दैट पर्सन विल बी प्रेफरिंग दैट मोर। सो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, यस। तो इस तरीके से इलेक्शंस को भी गेम की तरीके से देखा जा सकता है, राइट? मैम मतलब जहाँ, मतलब जिस एरिया में उनको लगेगा कि उनकी विनिंग की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, वहां ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। मतलब जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि उनका एक्शन है एक्सपेंडिचर करना, तो उनके पास चॉइस है कि वो 10,000 रुपए खर्च करना चाहते हैं, या 1 लाख रुपए, या 10 करोड़ रुपए, या 100 करोड़ रुपए, या कितने रुपए। ऐसे ही हर इंसान के पास अपनी अपनी चॉइस होगी। यस मैम। तो अलग अलग लोग अलग अलग एक्सपेंडिचर करेंगे, यस मैम। तो वो अलग अलग चॉइसेस में क्या प्रेफर करेगा? वो तो हमेशा वो चीज प्रेफर करेगा जिसमें वो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा होगा। जैसे मान लो बाकी लोग 10-10 करोड़ खर्च कर रहे हैं, उसने बस 5 करोड़ खर्च किया, तो कहीं ना कहीं उसकी कैंपेनिंग वीक रह गई, यस। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रिड्यूस हो गई। यस मैम। तो वो किस तरीके से चाहेगा? वो चाहेगा कि ही विल रैंक दोज एक्शंस प्रोफाइल मोर जहां पे उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर मैम टू अदर ये कैंडिडेट्स। ये मतलब नहीं देखेगा कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है पर कम में करना चाहे, ऐसे जो हम करते हैं नॉर्मल। ऑब्वियसली कम में करना चाहेगा, लेकिन वो अपने कंपेटिटर्स को भी तो देखेगा ना। यस मैम। तो वो ये चाहता है कि वो लीस्ट खर्चा करे, बट जो उसके कंपेटिटर्स करे उससे स्लाइटली ज्यादा करे। दैट विल गिव हिम द मोस्ट चांस ऑफ विनिंग, यस। राइट? तो वो इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज देखेगा, है कि नहीं? यस मैम। तो मतलब हमने क्या किया, इस तरीके की सिचुएशन को भी एक गेम के फॉर्मेट में समझ लिया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लोगों की डेली लाइफ की चीजों को भी स्ट्रेटेजिक गेम के फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? ऑल राइट। यस मैम। चलो जी, वेरी नाइस, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स नाउ। सो देयर इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ अ गेम विच इज कॉल्ड प्रिजनर्स डिलेमा। आपने शायद सुना भी होगा, मैंने आई थिंक एक बार करवाया भी था इन यस। प्रीवियस सेमेस्टर्स। सो लेट मी अगेन रिपीट द स्टोरी। तो आप प्लीज कहानी समझना अच्छे तरीके से। तो आपको पहले बैकग्राउंड समझा देते हैं, कहानी क्या है, फिर आप ही से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है? ओके जी। एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल एक्चुअली सी हैपनिंग इन द रियल लाइफ। मतलब असली लाइफ में भी होता होगा। आई एम नॉट मेट एनी वन, आई मीन आई एम नॉट मेट एनी पुलिस ऑफिसर एक्चुअली, कि मैंने पूछा हो कि ऐसे आप लोग करते हो या नहीं, बट आई डेफिनेटली सीन दिस इन मूवीज, आई डेफिनेटली सीन दिस इन टीवी सीरीज, जो अभी हम सिचुएशन आपको बताएंगे, ठीक है? तो इफ यू कैन रिलेट, इफ यू हैव आल्सो सीन दिस, लेट मी नो इन मूवीज और वॉट एवर, ठीक है? चलो, तो कहानी ये है कि देर आर टू सस्पेक्ट्स, ठीक है? देर आर टू सस्पेक्ट्स, दो लोग हैं जिन पे किसी चीज के लिए शक है, ठीक है? किसी क्राइम के लिए देर इज सम सस्पिशन ऑन दोज टू पीपल, ठीक है? दीज आर टू सस्पेक्ट्स फॉर अ मेजर क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम है, मतलब मर्डर टाइप का क्राइम है।
ठीक है। अब क्या किया है कि इनको, इन दो सस्पेक्ट्स को अलग अलग सेल्स में रखा गया है, सेल 1, ठीक है, एंड दिस इज सेल 2। इनको एक सेल में नहीं रखा गया है, इनको अलग अलग सेल्स में रखा गया है। दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2, ठीक है। ये सस्पेक्ट 1 है, पर्सन 1 हो गया, ये पर्सन 2 हो गया। इनको दो अलग अलग सेल्स में रखा गया है, ठीक है। अब पुलिस ने जो भी तहकीकात की, जो भी जांच पड़ताल की, उसमें ये मिला, ये पाया गया कि एविडेंस जो है इनके पास, वो एविडेंस इतना है कि उनको किसी माइनर ऑफेंस के लिए तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्विक्ट कर सकते हैं। माइनर ऑफेंस के लिए इनको कॉन्विक्ट किया जा सकता है। मतलब कोई छोटा मोटा एविडेंस इतना है कि किसी छोटे मोटे क्राइम के लिए इनको जो भी सजा मिलती है वो दी जा सकती है। बट इन पे सस्पिशन है कि इन्होंने मेजर क्राइम किया है, पुलिस को पता है, बट एविडेंस नहीं है उस बात का। और एविडेंस सिर्फ इतनी बात का है कि कुछ छोटा मोटा क्राइम किया है, लेकिन पुलिस को पता है कि इन्होंने क्राइम किया है, वो मेजर क्राइम किया है, इन्होंने ही किया है, लेकिन बस एविडेंस नहीं है उनके पास। ठीक है, ये कहानी समझ गए? सो यस मैम। बट नॉट इनफ एविडेंस, not enough evidence for convicting them for the major crime। मेजर क्राइम में कन्विक्ट करने के लिए अपने पास इनफ एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर पुलिस को इन्हें इस मेजर क्राइम में कन्विक्ट करना है तो क्या चाहिए? What does the police need in this situation? एविडेंस। एविडेंस चाहिए, लेकिन एविडेंस तो है ही नहीं, तो क्या चाहिए? एविडेंस नहीं है तो पुलिस को चाहिए कन्फेशन, Yes, ma'am. ठीक है। तो एविडेंस अगर नहीं है तो पुलिस को चाहिए कन्फेशन, और वो कन्फेशन जरूरी नहीं है दोनों लोग दे, एक ही इंसान दे दे तो उनको चल जाएगा, राइट। सो दे नीड कन्फेशन, सो they can't convict them unless one of them acts as an informer against the other one। कई बार पुलिस क्या बोलती है कि किसी इंसान को किसी क्राइम के लिए पकड़ लिया और फिर उसको क्या बोलते हैं कि आइदर यू हेल्प अस इन टेलिंग द डिटेल्स अबाउट द मिशन, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम छोटे प्लेयर हो, हम बड़ी मछलियों पे हाथ मारेंगे, राइट। यस मैम। तो ये वही Yes, वाली सिचुएशन है कि या तो तुम इंफॉर्मेंट बन जाओ, या तो तुम उसके अगेंस्ट बता दो कि उसने क्या किया है, तुम्हें छोड़ देंगे हम। नहीं बताया, और अगर उसने बताया तो तुम्हारी जो हालत होगी फिर वो तुम ही जानते हो। पुलिस इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो कोई या तो एक, क्या इन दोनों में से कोई एक एक दूसरे का इन्फॉर्मर बने और दूसरे के बारे में बता दे कि भाई इसने ये किया है। वो शायद चाहे खुद ने भी वो उसका पार्ट रहा हो, बट हु बिगिंस द कॉन्वर्सेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर दोनों चुप रहे, पुलिस ने अगर उनको लालच दिया कि भाई बता दे, नहीं तो अगर अगले ने बता दिया तो देख लियो तेरे साथ क्या होगा, ऐसे वक्त में भरोसा कितना काम आता है। सोचो पुलिस आपको बोल रही है कि अगर तुमने नहीं बताया और उसने अपना मुंह खोल दिया तो तुम्हारी सजा डबल हो जाएगी। तो अब वो बताए तो मतलब अगला इंसान फंस गया, और वो ना बताए
लेकिन उस अगले इंसान ने बता दिया तो आप फंस गए। तो इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रस्ट यू नीड टू हैव ऑन द अदर पर्सन टू थिंक कि दैट पर्सन विल नॉट ब्रेक इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। यस मैम। कि उसको अगर टेम्प्ट भी किया जा रहा है कि हम तुझे छोड़ देंगे, इन्फॉर्म कर दो। ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। people are people can break very easily under such situation, and this is precisely why police is using this tactics। ठीक है। तो हाँ, तो if both people remain silent, मैम वो कम करते भी होंगे फिर, अगर एक ने कन्फेस कर दिया तो दूसरे के लिए। वो पता नहीं वो मजाक कर रहे होंगे या सच में। कई जगह पे होता है कि अगर आप किसी बड़े क्राइम में चीजों को मैनेज करने में हेल्प करते हो तो आपकी सजा कम हो जाती है इफ यू एक्सेप्ट बीइंग अ विटनेस और समथिंग इन अ वेरी बिग क्राइम। हाँ, बट हो सकता है कि वो पुलिस आपको वैसे टेम्प्ट भी कर रही हो। यस तो आई मैम, मीन इस वाले केस में लेकिन वो छोड़ देंगे ना अगर आपने बता दिया सामने वाले को। इस केस में वो बोल रहे हैं कि या तो कम सजा मिलेगी, इस तरीके की सिचुएशन वो बोल रहे हैं। तो अभी हम भरोसा कर लेते हैं कि जो पुलिस बोल रही है वो करेगी। ओके। ठीक है। तो हाँ, इफ बोथ रिमेन साइलेंट, इफ बोथ रिमेन साइलेंट, इफ बोथ पीपल रिमेन साइलेंट, तो दोनों शांत रहे। तो जो पुलिस के पास जो एविडेंस था वो तो सिर्फ माइनर क्राइम को कन्विक्ट करने के लिए था। तो दोनों को सिर्फ माइनर क्राइम की जो छोटी मोटी सजा थी वो मिलेगी और फिर दोनों लोग निकल जाएंगे, राइट। दे विल बी कन्विक्टेड, दे विल बी कन्विक्टेड और द माइनर क्राइम एंड विल बी इन जेल फॉर 1 year। 1 साल के लिए जेल में रहेंगे। ये कहानी है अगर दोनों शांत रहते हैं तो। ठीक है। अगर इफ वन इन्फॉर्म्स अगेंस्ट द अदर, अगर किसी एक ने दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, रिवील कर दिया, तो क्या होगा? जिसने इंफॉर्मेशन दी वो फ्री, जाओ भाई हो गया आपका खत्म। शी विल बी फ्री, एंड जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसको 4 साल की सजा, एंड अदर विल बी कन्विक्टेड फॉर 4 years। यहाँ पे असली फ्रेंडशिप पता चलेगी कि तुम सच में दोस्त हो कि नहीं हो, राइट। यस और मैम। उसमें हाँ, तो ये मैम कहानी है। अगर दोनों का इक्वल रोल होगा तो दोनों ये चूज कर लेंगे कि हम दोनों ही नहीं बताते। लेकिन वो आपस में बात नहीं कर सकते ना कि भाई तू भी मत बताइयो मैं भी नहीं बताऊंगा। उनको पता ही नहीं है हाँ कि पुलिस उनको ये स्कीम ऑफर करने वाली है। मैम, मुझे लगता है पहले से उनको पता होता होगा, जो क्रिमिनल होते होंगे, कि ऐसा आ सकता है और हम क्या चूज करेंगे। हाँ, मतलब अगर उनको मान लो इस सिचुएशन में पहले से पता हो तो वो एक दूसरे को पता होगा कि ये लोग हमारे साथ ये गेम खेलेंगे तो हम दोनों ही शांत रहेंगे। यस। ठीक है। या फिर मतलब यही इसी तरीके की बात। लेकिन फिर अब आप ये सोचो एक बात कि अगर ये स्कीम है और लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अगर आप दोनों शांत रहोगे तो भी तो इंसान अपना मन बदल सकता है ना। हाँ वो तो हो सकता है। तो फिर क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। या मे बी उसका इतना रोल नहीं था, फिर तो वो जरूर ये करेगा कि भाई मेरा इतना रोल नहीं था तो मैं छूट जाऊँ और आप कन्विक्ट हो जाओ। रोल की तो बात ही नहीं है, तुम साथ में पकड़े गए हो, तुम दोनों ने ही क्राइम किया है, बताओ।
तुम डिसाइड करके जाओ कि हम नहीं बताएंगे, दोनों हम चुप रहेंगे, लेकिन एंड में तुम धोखा दे दो। हाँ, वो तो मूवी का प्लॉट वगैरह भी होता है। तो अब ये तो हो गई हमारी कहानी। अब इस कहानी को अगर हमें इस गेम के फॉर्मेट, ये कहानी समझ में आ गई? मैम जी। मैम, अगर दोनों ने एक दूसरे के बारे में बता दिया तो? हाँ, दोनों ने एक दूसरे के बारे में बता दिया तो दोनों जाएंगे 4-4 साल के लिए, क्योंकि पता चल गया है कि अगले बंदे ने भी वो किया है, क्राइम किया है, उस बंदे ने भी क्राइम किया है। बोथ पीपल हैव डन द क्राइम, बोथ पीपल विल गो, ओके मैम। नोबडी विल बी फ्री। सो फ्री कब होगा? जब एक इंसान ना बोले और दूसरा बोल दे। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को हम लोग कैसे इस गेम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, हमारा टास्क ये है। ठीक है, तो कितने प्लेयर्स हैं? हु आर द प्लेयर्स इन दिस गेम? दो कॉन्विक्ट, टू। मैम यस। टू। यस। टू, सॉरी, नॉट टू कॉन्विक्ट, टू सस्पेक्ट्स, यस। ठीक है। अब इनके पास एक्शंस क्या क्या हैं? या तो बोलो या शांत रहो, यही दो एक्शंस हैं। यस। कि या तो आप शांत रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, या फिर आप अपना बयान दे दोगे, है कि नहीं? यही ऑप्शन है। यस मैम। ठीक है। सो तो दो एक्शन हैं, आइदर यू बिकम क्वाइट और यू थिंक। थिंक का मतलब होता है, थिंक मीन्स इन्फॉर्म ऑन समवन, टू अथॉरिटीज। किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इसको बोलते हैं थिंक करना। ठीक है। आपके पास दो एक्शन हैं, आइदर यू रिमेन क्वाइट और यू इन्फॉर्म, राइट? दो ऑप्शन है। ठीक है। और हमारी प्रेफरेंसेस कैसी हैं? तो पहली बात तो क्या क्या ऑप्शंस होंगे? आइदर, जैसे मतलब कोई भी एक्शन प्रोफाइल, दो प्लेयर्स हैं, राइट? तो या तो दोनों क्वाइट क्वाइट रहेंगे, क्यों क्यों क्वाइट क्वाइट, या तो एक बंदा क्वाइट, एक बंदा थिंक कर रहा है, दूसरा इंसान थिंक कर रहा है, ये इंसान क्वाइट है। और हो सकता है दोनों ही एक दूसरे के बारे में इंफॉर्म कर दें, राइट? यस और नो? यस मैम। तो अब एक बात बताओ, जैसे लेट्स कंसिडर थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बताओ, फर्स्ट जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा? इस सिचुएशन में दोनों शांत रहेंगे, तो वो कितने साल के लिए जेल जाएगा? 1 year। 1 ईयर जेल, राइट? परफेक्ट। अगर ये शांत रहा लेकिन इसने थिंक कर दिया तो? 4 years। 4 इयर्स। ओके, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट दिस? 0। कि इसने थिंक कर दिया, इसने जो है ये शांत रहा, तो ये 0 इयर्स। और ये व्हाट अबाउट दिस? 4 years। तो दोनों ही 4 4 इयर्स के लिए जेल में रहे। तो विच इज द बेस्ट फॉर हिम?
0 years. तो 0 years मतलब ये एफ फिंक कॉमा क्वाइट ये सबसे बेस्ट है उसके लिए कि भाई मैं इन्फॉर्म कर दूं और अगला इंसान शांत रहे, ये मेरे लिए बेस्ट है। दिस इज माई Yes. रैंक 1। फिर उसके बाद 1 year. 1 year jail if both are quiet, right? Quiet, quiet. This is my second rank. फिर उसके बाद 4 year. अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे भी 4 year है, यहाँ पे भी 4 year है। फिर क्या करूं? दोनों को सेम रैंक. दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये वाला इंसान, सेकंड इंसान फ्री जा रहा है, इसमें सेकंड इंसान भी मेरे साथ ही जा रहा है, राइट? अच्छा हाँ कर पाओगे. तो अगर मेरे को सेम ही सजा मिल रही है तो मैं इस तरीके से इसको रैंक दे सकती हूँ कि मैं दूसरों का भला भी चाहती हूँ, मुझे इस तरीके से भी, मैं इस तरीके की इंसान हूँ, राइट? यस मैम. तो अगर मैं मुझे सेम नंबर ऑफ इयर्स जेल जाना है तो मैं सोचूंगी कि कम से कम मेरा दोस्त या मेरी दोस्त तो ना जाए, राइट? तब मैं क्या प्रेफर करूंगी थर्ड रैंक पे इस लॉजिक से? क्वाइट. क्वाइट। क्वाइट। एक सेकेंड। इफ आई रिमेन क्वाइट इफ बोथ थिंक, उस केस में हमने क्या बोला है कि क्या हो रहा है? आई थिंक देर माइट बी समथिंग डिफरेंट हियर। जस्ट अ सेकेंड। Okay, sorry, I missed one detail, guys, which is if both people inform on each other, I said they'll still go for 4 years. So the detail is if both people inform, yeah, if both people think, then they will spend 3 years in jail. They spend 3 years in jail. ये सिस्टम है, सॉरी आई मिस्ड दिस, ठीक है? तो इफ बोथ पीपल स्पेंड 3 years इन जेल हियर, ठीक है? तो इसके हिसाब से हमने इसको फर्स्ट रैंक दे दिया, फिर इसको सेकंड रैंक दे दिया, उसके बाद मेरा थर्ड रैंक इसी का आएगा, फिंक फिंक, राइट? यस. सो दिस विल बी फिंक फिंक, and then what is fourth? Fourth will be 4 years, which is I remain quiet and you think. तो ये मेरी ऑर्डरिंग हो गई फर्स्ट पर्सन की, राइट? सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर मी फॉर द फर्स्ट प्लेयर। अगर दिस इज फॉर द फर्स्ट प्लेयर, राइट? दिस इज द सिचुएशन, दिस इज फर्स्ट रैंक, दिस इज सेकेंड रैंक, दिस इज थर्ड रैंक, दिस इज फोर्थ रैंक। तो अब हमने क्या बोला था कि इस तरीके के गेम्स में आप पे ऑफ मैट्रिक्स का भी यूज कर सकते हो टू represent the ranks, right? यस मैम. So how will I do that? तो मैं यस. इसको कोई भी नंबर दे सकती हूँ, इस सिचुएशन को एक नंबर देती हूँ, इसको एक नंबर देती हूँ, इसको कोई एक नंबर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको नंबर दे दिया 3, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 0। यस। यस मैम. दूसरे प्लेयर की भी रैंक्स इसी तरीके से होंगी। यस। यस मैम. क्योंकि उसका सिचुएशन भी ऐसा ही है, he will also go for 0 year, 1 year, 3 year and 4 year in jail depending on what the other person is doing, right?
यस मैम। तो इस सिचुएशन को अब हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? एक टेबल फॉर्मेट में। बहुत ही प्यारा तरीका है इस चीज को रिप्रेजेंट करने का, विच इज दिस। सो आप इस सिचुएशन को, ये जो हमने एग्जाम्पल किया है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे? वी कैन क्रिएट अ टेबल, 2x2 टेबल इन दिस फॉर्मेट। एंड व्हाट कैन वी डू? वी कैन डू द फॉलोइंग, कि ये आपने जो है एक टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है। अब आपने क्या किया? ये टेबल में लेफ्ट साइड पे हु आर द प्लेयर्स, और टॉप पे हु इज द प्लेयर। सो प्लेयर हियर इज सस्पेक्ट 1, द प्लेयर हियर इज सस्पेक्ट 2, ठीक है। फिर यहां पे आप लिख सकते हो कि उनके एक्शंस क्या क्या हैं। तो सस्पेक्ट 1 का एक्शन था क्वाइट रहना और फिंक करना। सस्पेक्ट 2 का एक्शन था क्वाइट रहना और फिंक करना। तो व्हाट विल दिस बॉक्स रिप्रेजेंट? That this person was quiet and this person was quiet, right? What will this box represent? That this person was quiet, this person finked. What will this represent? This person is thinking, this person is quiet. What will this box represent? Both people think, right? और उसके हिसाब से हम इनको, जो हमने इनको पे ऑफ दिए थे, वो हम पे ऑफ इनको दे सकते हैं। तो जैसे क्वाइट क्वाइट के केस में हमने फर्स्ट पर्सन को कितना नंबर दिया था? 2। यस मैम। तो मैं यहां पे क्या करूंगी? अपना पे ऑफ लिख दूंगी 2, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का। क्वाइट और फिंक, क्वाइट और फिंक के केस में मैंने फर्स्ट पर्सन को क्या नंबर दिया था? 0, राइट। तो मैं क्या लिख दूंगी यहां पे? 0, ठीक है। फिर यहां पे क्या हुआ था? फिंक एंड क्वाइट। तो फिंक एंड क्वाइट पे हमने क्या नंबर दिया था? 3। सो वी विल राइट 3 हियर, ठीक है। एंड सिमिलरली फिंक फिंक पे हमने क्या नंबर दिया था यहाँ पे? 1। सो हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के लिए कॉमा के लेफ्ट साइड में नंबर होगा, कॉमा के राइट साइड में जो नंबर है वो सेकंड पर्सन के लिए होगा। इस तरीके से हम एक पे ऑफ, इसको बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स, कि अलग अलग एक्शन प्रोफाइल्स के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए कितना कितना पे ऑफ है वो हमने बताया है, राइट? ठीक है। यस मैम। कैन यू हेल्प मी फिल द नंबर्स हियर एज वेल? क्वाइट क्वाइट में फिर से क्या नंबर दूं मैं? 2, 2। है ना? वेरी नाइस। और मेरा नंबर 3 सबसे ज्यादा, मेरा नंबर सबसे ज्यादा 3 कैसे, कहाँ पे जाएगा? जब एक इंसान, अगला इंसान क्वाइट रहे और मैं फिंक करूं। यस मैम। तो यहाँ पे मैं नंबर 3 दे दूंगी, ठीक है। फिर 0 कहाँ दिया था हमने? ये 0 कहाँ दिया था? जब मैं क्वाइट थी और अगला इंसान फिंक कर रहा था। तो मैं क्वाइट हूं, अगला इंसान थिंक कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे 0 असाइन करना पड़ेगा। यस मैम। तो बचा हुआ यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट? ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया मेरा? दिस इज अ पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इज दैट ओके? यस। ऑल राइट, वेरी नाइस। और किस किस, गाइज ये समझ आ गया कैसे किया, क्या किया? ठीक है। यस मैम। अच्छा, तो ये जो प्रिजनर्स डिलेमा, दिस, इस चीज को बोलते हैं, इस गेम को बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। जहां पे अगर आप दोनों ही कॉपरेट करना बंद कर दो, तो देखो दोनों को 1-1 मिल रहा है। और अगर दोनों चुप रहो
तो दोनों बेटर सिचुएशन में आ सकते हो ना। फेंक यस करना मैम। मतलब क्या, कॉपरेशन बंद करना, कॉपरेट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। और अगर बगावत पे चले आए तो, इफ यू जस्ट डू व्हाट यू वांट एंड लीव द अदर पर्सन हाई एंड ड्राई, you are taking benefit but the other person is suffering, right? Same thing here as well. Yes. So यहाँ पे क्या हुआ है, there are gains, there are gains from cooperation, but incentive to free ride. मतलब अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें तो दोनों दो दो ले सकते हैं। यस। लेकिन ये दो दो लेने की बजाय वो इंसान क्या चाहते हैं कि मैं इंफॉर्मेंट बन जाऊं और मैं 3 यूनिट्स ले लूं, राइट? कि सजा वो भुगते, मौजे में करो, राइट? यस मैम। यही तो, इसी को तो बोल रहे हैं कि कॉपरेट, शांत रहोगे तो अगले इंसान के साथ आप कॉपरेट करोगे, कॉपरेट करोगे तो गेन्स है, कम सजा मिलेगी, लेकिन आपको अपनी भी पड़ी है कि मेरे को भी मजे करने हैं। तो देर आर गेन्स फ्रॉम कॉपरेशन बट you have an incentive to free ride. The other person will do the punishment. I want to enjoy, right? This is the situation. और इस तरीके के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कि मान लो देर आर 2 स्टूडेंट्स हु आर डूइंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट, ठीक है, वर्किंग टुगेदर ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट। क्या होगा वर्किंग टुगेदर ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट में? प्लेयर्स हैं 2। क्या ऑप्शन है कि आप हार्ड वर्क करो या आप गूफ ऑफ करो। गूफ ऑफ मतलब मजे कर रहे हो आप, चिल कर रहे हो अपना। 2 ऑप्शन है, प्लेयर 1, प्लेयर 2। 2 ऑप्शन है, वर्क हार्ड, गूफ ऑफ। इसके पास भी ऑप्शन है वर्क हार्ड, गूफ ऑफ, राइट? ये भी वैसी ही सिचुएशन हो गई प्रिजनर्स डिलेमा जैसी। इफ यू बोथ वर्क हार्ड, yes, you are going to benefit, but you would ideally like the other person to work hard and yourself to chill, right? तो इस केस में भी हमारा पे ऑफ इसी तरीके का हो सकता है कि इफ यू बोथ just think about chilling, none of you is going to get any marks, right? है ना? किसी को ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। तो मान लो आपका पे ऑफ है 1,1 ईयर। फिर अगर एक इंसान, फर्स्ट प्लेयर तो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन सेकंड प्लेयर बहुत मजे कर रहा है, तो आपका असाइनमेंट अच्छे से होता है, नंबर अच्छे मिलते हैं, और आपने एंजॉय भी किया, नंबर भी अच्छे मिले। लेकिन पहले इंसान ने तो बहुत मेहनत कर ली, तो बेचारे को बहुत दुख हुआ कि इतनी मेहनत करी, दो दो इंसानों की मैंने मेहनत करी, तो उसको जो पे ऑफ मिला वो 0 हो गया, आपको जो पे ऑफ मिला वो 3 हो गया। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे हो गई, और दोनों ने हार्ड वर्क किया तो 2-2 पे ऑफ है, बिकॉज दोनों का स्कोर अच्छा आया, इक्वली मेहनत डिवाइड हुई। हाँ, लेकिन थोड़े से मजे नहीं कर पाए, इसलिए जो है थोड़ी मेहनत करने में आपको थोड़ा सा मेहनत लगी, तो इसलिए आपका बेनिफिट थोड़ा कम हो गया, राइट? तो ये भी बिल्कुल प्रिजनर्स डिलेमा जैसी सिचुएशन हो गई। यस, राइट? इज दैट ओके?
हाँ, सो इसमें क्या है कि इन दिस सिचुएशन व्हाट वी आर सेइंग, we are saying that two people are working on a project, right? If both people enjoy, their project won't be very good, so they'll just get very less marks, so their payoff will be 1-1. ठीक है? If one person is working hard, the other person is enjoying, you will get good marks in your assignment, so you get happiness from there. But this person is enjoying also and getting good marks also without doing any work, so he is very very happy. But this person got good marks because of the hard work that he had to do. But उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, राइट? उसको दो लोगों का काम खुद करना पड़ा, राइट? तो ही इज सैड अबाउट दैट, इसलिए हमने यहाँ पे 0 दिया इसको, ठीक है? एंड सिमिलरली हियर, कि अब यहाँ पे ये इंजॉय कर रहा है, ये हार्ड वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने दोनों को, बोथ पीपल आर वर्किंग हार्ड, सो बोथ गेट वेरी नाइस गुड मार्क्स, ठीक है? बट हाँ, डोंट, none of them is getting the time to enjoy, so they are better from this situation because of the marks, but yes, they are not getting to enjoy, इसलिए payoff is 2,2. तो this is exactly like a prisoner's dilemma situation, कि अगर आप दोनों इंजॉय करने की बजाय हार्डवर्क पे ध्यान दो तो बेटर कर सकते हो, बट व्हाट डू वी वांट, कि अगला बंदा हार्डवर्क कर ले लेकिन मैं इंजॉय करूं। So this is exactly what was happening with prisoner's dilemma also, कि please do the punishment for me, I want to enjoy, I want to be free, है ना? This is the situation, okay? So ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है? So there are other examples which can, match up with the situation of prisoner's dilemma. It could be a duopoly. Duopoly मतलब, जैसे monopoly means there is a single firm. Sorry, duopoly. Duopoly means, monopoly means there is a single firm. Duopoly means there are two firms. ठीक है? So if there are two firms only in a market, that situation can be, modeled in this format. So please, I'll tell you that, there are two firms, firm one, firm two. Two option. If this firm is keeping high price, if this firm is keeping low price, and if this firm is keeping high price, this firm is keeping low price. Price, 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 price. ठीक है? तो ये सिचुएशन भी बिल्कुल उसी तरीके से मॉडल की जा सकती है। तो अब आप एक बात बताओ कि देखो, अगर if both the firms are going to, if there are only two firms in the market, तो सारे कस्टमर्स सिर्फ इन्हीं के पास आएंगे, राइट? और इस फर्म ने हाई प्राइस रखा है, इस फर्म ने लो प्राइस रखा है, सो सारे कस्टमर्स लो प्राइस वाली फर्म के पास चले जाएंगे, राइट? यस। तो हाई फर्म वाली जो हाई प्राइस वाली जो फर्म है उसके पास तो कोई रहेगा ही नहीं। तो हो सकता है उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में जो पैसा लगाया हुआ हो, उससे उसको लॉस ही हो रहा हो, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर ना कर रही हो। तो मान लो, इफ यू आर कीपिंग अ हाई प्राइस एंड द अदर फर्म इज कीपिंग अ लो प्राइस, लेट्स से यू गेट अ पे ऑफ -200, -200, ठीक है? एंड मान लो, अगर आपने लो प्राइस रखा है तो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 1,200 रुपए है। ये सिचुएशन हो गई, ठीक है? इज दैट ऑल राइट? ठीक है? तो लो प्राइस रखने पे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो 1,200 था। अब अगर इस फर्म ने भी लो प्राइस रख लिया
तो आपका भी लो प्राइस है, इसका भी लो प्राइस है, तो आधे कस्टमर्स ये ले जाएगा, आधे कस्टमर्स ये ले जाएगा, तो आपका प्रॉफिट आधा आधा हो जाएगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी। यस। तो मान लो 600 रुपए आप कमा रहे हो। यस, इज दैट ओके? तो अगर आप हाई रख रहे हो, दूसरा फर्म लो प्राइस रख रहा है, nobody is going to come to you and you will have losses. The other firm is going to get the benefit of it. If you are both keeping low prices, तो जो भी इंसान प्रॉफिट ले रहा था लो वाली सिचुएशन में, उसका प्रॉफिट आधा आधा बट गया। ठीक है। अब अगर आप हाई प्राइस रखते हो दोनों लोग, तो कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उनको हाई प्राइस में चीजें खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो और तो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि दो ही फर्म्स हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो ज्यादा है, लेकिन वो दो लोगों में बट जाएगा। तो मान लो ओवरऑल प्रॉफिट पहले 1200 होता था, अब 2000 हो जाएगा मान लो, लेकिन अब दो फर्म्स है, दोनों हाई प्राइस रख रही है, दोनों में 1000 1000 बट जाएगा। राइट। तो मान लो ये 1000 1000 हो गया। तो ये भी बिल्कुल प्रिजनर्स डिलेमा वाली सिचुएशन हो गई, कि आपको दोनों लो प्राइस रखने की बजाय दोनों हाई प्राइस रखो। लेकिन अगर किसी एक का मन थोड़ा सा लालची हुआ और उसने सोचा कि मैं हाई प्राइस रख के सिर्फ 1000 रुपए कमा रहा हूं, मैं लो प्राइस रख देता हूँ 1200 रुपए कमा लूंगा। राइट। तो you get some benefit from cooperation, but there is an incentive to deviate, incentive to free ride. प्रॉफिट चेंज कैसे होगा वो मैं बता देती हूँ। जैसे अब दोनों फर्म्स अगर हाई प्राइस रख रही हैं, तो आप इस सिचुएशन में हो। राइट। प्रॉफिट चेंज कैसे हो गया 1200 से 2000? अच्छा, तो मान लो 100 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, 100 कंज्यूमर्स हैं, और लो प्राइस मतलब 12 रुपीज, लो प्राइस इज 12 रुपीज, एंड देर इज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेट से, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1200 रुपए, और हाई प्राइस इज लेट से ₹20, और कस्टमर 100 ही है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 2000। हाई प्राइस लो प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट तो बदलेगा ना, अगर क्वांटिटी सेम हो तो। राइट, लाइक दैट। तो ऑल्दो आप अगर हाई प्राइस रखोगे, कॉपरेट करोगे, तो इट्स गुड, बट यू ऑलवेज हैव एन इंसेंटिव टू डिविएट एंड सी कि चलो लो प्राइस रखते हैं, सारा पैसा मेरे पास तो आएगा। तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ सिचुएशन ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा गोइंग ऑन हियर। ठीक है। और भी अलग तरीके से यूसेज होता है, जैसे कि आर्म्स रेस। आर्म्स रेस मतलब जो अलग अलग कंट्रीज हैं अपने पास वेपन्स कलेक्ट करती हैं, पहले आप कलेक्ट करते हो, फिर अगला बंदा कलेक्ट करता है, फिर आप फिर से कलेक्ट करते हो, ये एक नेवर एंडिंग चीज हो जाती है। अगर दोनों कॉपरेट करो, डिसाइड करो कि कोई आर्म्स नहीं रखेगा, तो दोनों के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, बट नहीं है भरोसा। लगता है कि क्या पता हमारे पीछे से वो इस चीज की प्लानिंग कर रहे हो, तो हम भी फिर इन्वेस्ट करते हैं उस चीज में, है कि नहीं? आर्म्स में, मिलिट्री में, न्यूक्लियर मिसाइल्स में, ये सब चीजों में। मान लो दो कंट्रीज आपस में डिसाइड कर लें कि भाई हम कभी नहीं चलाएंगे एक दूसरे पे ये सब चीजें, बट इस चीज पे ट्रस्ट करना पॉसिबल है क्या? हमें ऐसा लगता है कि क्या पता वो सीक्रेटली कर रहे हो कुछ, इस चक्कर में हम भी फिर इस चीज के लिए तैयार होते हैं। तो अगर वो एक दूसरे की बातों पे रहते, तो हमारी कंट्री का रिसोर्स, उनकी कंट्री का रिसोर्स, कितना रिसोर्स बच जाता और एक्चुअल चीजों में यूज होता, rather than maintaining missiles and weapons. Yes. तो दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा, आर्म्स रेस। दूसरी, कॉमन प्रॉपर्टी यूसेज। जैसे कॉमन प्रॉपर्टी यूसेज मतलब, यस, कॉमन प्रॉपर्टी यूसेज मतलब ऐसी चीजें जो कॉमन यूज के लिए हैं, कि अगर हम लोग सब लोग कॉपरेट करके चीजें यूज करेंगे, तो ओवरऑल सबके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया, मैंने अगर बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने के परस्पेक्टिव से चीजें सोची, तो क्या पता अगला बंदा ना सोचे, क्या पता वो ओवर फिशिंग कर ले,
मान लो अगर एक पॉन्ड की बात करें, आप एक दिन में 4 मछलियां पकड़ो तो वो रिप्लेसमेंट रेट है, ठीक है। तो आपने एक दिन में सिर्फ 2 ही मछलियां पकड़ी कि रिप्लेसमेंट रेट मेंटेन होता रहे, लेकिन वो कॉमन एरिया है। तो आप क्या सोचोगे कि मैं तो 2 पकड़ लूं, क्या पता अगला इंसान जो आए वो ना छोड़े मछलियां, वो तो सारी कैच करके लेके चला जाएगा, तो मैं क्यों छोड़ू, मैं क्यों इतना दानवीर बनूं। तो देर इज ऑलवेज एन इंसेंटिव टू एक्सट्रैक्ट, कि भाई अगला इंसान उस चीज को ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट, यू कांट ट्रस्ट दैट अदर पर्सन। सो यहाँ पे भी प्रेसलर्स डिलेमा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इन द केस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी यूसेज, राइट। ठीक है। So these are some of the situations. We will see other examples as well, different examples, अलग अलग तरीके के, अलग अलग situations में अलग अलग features हैं. So okay, all right, fine, okay. I'll stop here for today, and you can get started with chapter number 2 from Osborne. ठीक है? All right. Any doubts so far? Okay. Thank you. Take care.